Uh, See, next approach I would say is one of the important approach. It's one of the newest approach for understanding the management principle and understanding their application basically. See, this process is called given by the Michael Hammer. It's called nature, oh sorry, BPR. That is called business process reengineering. Now this whole concept is actually based on the word re-engineering. Re-engineering का मतलब होता है that you know the process. ठीक है, you know what you're going to achieve, but you are doing it in a new way where the quality of the product is improving, the productivity of the whole process is improving, the cost is going down, and still you are competitive in the market. इसे हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के बारे में एज एन आप कह सकते हो एग्जाम्पल बता सकते हैं कि और ये प्रोसेस आई कहाँ से। ये प्रोसेस एक्चुअली एक रियल लाइफ स्टडी का नतीजा है जो कि थी IBM की, दैट इज IBM क्रेडिट कॉरपोरेशन, सबने सुना होगा। नाउ द पॉइंट इज, इस थ्योरी को समझने के लिए ना एक चीज़ समझो जो है ये, दैट इज़ द डेफिनेशन। माइकल हैमर ये कहते हैं दैट you are not thinking, you are actually rethinking, you are redesigning the business processes and giving them a change in a critical way so that the cost, the quality, the service and speed, everything is improving. Re-engineering का मतलब ही यही है that it's not that you are doing something new, you are doing the old processes but you are not doing in the traditional way, you are doing them in the new way so that आप अपनी वेस्ट को, डुप्लीकेसी को, अनरिस्पॉन्सिव चीज़ों को ख़त्म करो, टाइम को कम करो, वेस्टेज को कम करो, अननेसेसरी प्रोसेसेस को बंद करो, सो दैट योर वर्क वुड स्पीड अप, सो दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इवन ह्यूमन बींग गोज अप। री इंजीनियरिंग के केस में वट दे are saying it that always ask yourself, why do we do, why I am performing an activity, why I am doing a task, am I gaining from that, is my process is improving, is my productivity is going up, am I being efficient, ठीक है। और again the second question that you're supposed to ask to yourself is, why do we do in this way only, can I do the same task in another way, ठीक है, can I perform the same thing through any other method, will that method be more applicable, will that method be more efficient, that is the whole process of business process re-engineering. So business process re-engineering एक्चुअली कॉन्सेप्ट रखा गया 4 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन विद द टाइम बढ़नी चाहिए, ठीक है, आपकी एडवांटेज बढ़नी चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होता है एंड विद द टाइम यू हैव टू बिकम स्मार्ट ऑल्सो। जैसे स्मार्ट क्लासेज होती हैं तो वो क्यों होती हैं, क्लासेज आर क्लासेज, there's a traditional way of doing classes or the lectures, there's a new way of doing lectures which is also called the smart classes. Why they have been introduced? Because there was some kind of monotony, there was some kind of change was also required. The final outcome basically I think has improved with the time, and people have also gained, or the students have also gained interest in those classes which are actually smart in nature. My opinion may be different. So the problem or the sorry, the advantage is that BPR, that is your business process re-engineering, is basically targeting reducing the unwanted operation. ठीक है, अनवांटेड ऑपरेशन का मतलब क्या है, दैट वी आर नॉट सेइंग दैट यू हैव टू गेट रिड ऑफ द पीपल, लोगों को नहीं हटाना है, लेकिन वो लोग जो 10 एक्टिविटी करते हैं, क्या वो 10 चीज़ें 5 में, 6 में, 8 में लोअर डाउन हो सकती हैं, ताकि आप उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाओ। जैसे मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। एक ही बंदे को काम, पहले तो काम को बांटो, फिर एक ही बंदे को वो बार बार काम दो ताकि वो उसे करके एक्सपर्ट हो जाए। बट विद द टाइम इट गिव्स मोनोटनी ऑल्सो, आप बोर हो जाते हो, यू डू नॉट फाइंड एफिशिएंसी इन दैट वर्क, इट बिकम्स वेरी रूटीन वर्क फॉर यू, बट दैट monotony leads to inefficiency also. So इसीलिए the BPR is also saying that it should not be confused with automation. हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोगों को हटाओ, automated work करो, no, just think the new way of doing the thing, the new way of employing those people and increasing their efficiency, ठीक है। So what are the features or the distinctive features of BPR? Most important,
फंडामेंटल री थिंकिंग. योर डेफिनेशन स्टार्ट्स ऑफ द वर्ड री थिंकिंग. तो फंडामेंटली, ठीक है, कोई चीज़ कैसे होती है, वो काम कैसे होता है, वो ऑपरेट कैसे होता है, उसके बेसिक एजम्पशंस क्या हैं, हम उस बिज़नेस की एक्टिविटी को क्यों करते हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में दोबारा सोचो. ऐसा ही करते हैं, ये तो होता ही है, इसको चेंज करने की क्या ज़रूरत है. इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग देन यू आर नॉट फंडामेंटली री थिंकिंग. ठीक है. व्हेन यू हैव दैट अर्ज टू चेंज, टू अंडरस्टैंड वाई अ पर्टिकुलर थिंग इज हैपनिंग एंड हाउ इट कैन बी चेंज, देन BPR इज देयर. इफ़ योर थिंकिंग इज़ लाइक कि ये तो ऐसे ही होता है, इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, देन यू आर नॉट अप्लाइंग BPR प्रिंसिपल्स. एंड द रेडिकल चेंज. रेडिकल चेंज का मतलब होता है रूट से समझो. ठीक है. किसी भी चीज़ को अगर आप बेसिक से समझते हो तो आपको ये समझ में आता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या गलती हो सकती है, या कहाँ पे ऐसा है जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. ठीक है. तो जैसे कि आई टेल यू एक एग्जाम्पल विच इज़ अ वेरी गुड BPR एग्जाम्पल. अगर आप आज से कुछ टाइम पहले का सोचो, नॉट अभी, बट ये इतने ज़्यादा टेक अवेज़ के ऑप्शंस नहीं होते थे. ठीक है. देयर वॉज ऑलवेज अ सिटिंग रेस्टोरेंट्स. टेक अवे वॉज एक्चुअली ओनली द होम डिलीवरी कॉन्सेप्ट कि भैया फ़ोन आएगा होम डिलीवरी के लिए तो होम डिलीवरी कर देंगे. टेक अवेज वर नॉट देयर. ठीक है. नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ टेक अवे काउंटर्स, लॉट ऑफ. इट वॉज नॉट दैट प्रोमिनेंट. नाउ वाई? द प्रोसेस इज सेम, द फूड इज सेम. ठीक है. बट दे थॉट एंड दे ऑब्वियसली उसकी जो कहते हैं ना बेसिक स्ट्रक्चर को समझा गया कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट देयर टू सिट, who just want to take their food, obviously in the less period of time, and they just want to go away with their regular work, or maybe they are going outside, or maybe they are going at a long for a long journey. It all depends upon the situation, but the point is the radical change, little modification, little enhancement of the facility, and you can go obviously start with the new structure. So it all depends upon how you are utilizing this thing. Then again there should be, or sometimes there is a dramatic improvement, how you are changing the old way to new way. जैसे कि your all these urban clap and app just उसको सोचो वो क्या है. It's one of the BPR. ऐप है, ठीक है, लेकिन it's doing the same work. They are doing the same work. They may be doing at their place, suppose saloon services, लेकिन now they are giving you more satisfaction. They are also becoming more competitive. They are understanding that the environment is changing. People doesn't have time to visit every Sunday or every month. ठीक है. They want to do it according to their time, their convenience. They just do not want to stand in line. That is also BPR, the dramatic improvement in the market structure. So, and if you ask yourself, they are doing the same service, but they are providing it in a little different way. So in that way they are getting more customers, and obviously the people are also getting satisfied because it is according to their convenience. And the key processes, see, business process is always obviously connection about all the activities where a product is or the input is being converted into output. So वो जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के बीच की प्रोसेसेस होती हैं, BPR उनको कॉन्सेंट्रेट करता है सारी. और उनमें से कौन सी आप कह लो इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नॉन एक्टिव हैं जिन्हें हटाया जा सकता है, जिनके बिना भी काम हो सकता है, या जिन्हें किसी के साथ मर्ज किया जा सकता है, सो दैट द 10 विल बिकम अगेन, आई सेड इन द 2 minutes बैक कि उसे 5 में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. ठीक है. नाउ सो पुटिंग BPR इनटू प्रैक्टिस का मतलब क्या है? एक्चुअली पुटिंग BPR प्रैक्टिस का मतलब ये है, अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू पुट इनटू BPR. सबसे पहले प्रोसेसेस को इम्प्रूव करो. जैसे मैंने कहा, when you are converting an input into output, there are a lot of processes. The sequence of task is always there. Understand those sequence, where the improvement is required, which process can be eliminated, which process can be synthesized with other. ठीक है, so that there will be a cost reduction. Focus on that. Then understand that you have to be competitive. You have to be best in your class. You have certain standards जिन्हें आपको पूरा करना है. And then ब्रेक इवन पॉइंट पे आओ. रीराइटिंग रूल्स का मतलब ये है, नाउ हैव न्यू डेफिनेशन ऑफ द सेम टास्क, हैव न्यू डेफिनेशन फॉर द सेम वर्क. ब्रेक इवन पॉइंट में अचीव करो.
सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीपीआर? सी, जब भी आप बीपीआर की एडवांटेजेस के बारे में समझोगे, आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा देखो और वही उसकी एडवांटेजेस हैं। जैसे कि बीपीआर में आपका फोकस है एलिमिनेट करना क्वालिटी को इम्प्रूव करना, टाइम को रिड्यूस करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक है, तो बेसिकली जो बीपीआर की फिलॉसफी थी या जो उसका टारगेट था इनिशियल, वो था वेस्ट प्रोडक्शंस को कम करना, ओवर प्रोडक्शन को कम करना। वेटिंग टाइम होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, लोग आते थे, वेट करते थे, उनका खाना पैक होता था, फिर वो जाते थे। ड्राइव थ्रू, टेक अवेज, ये क्या है? आइए, मिनिमम टाइम में यू जस्ट टेक योर फूड एंड गो। सो जो ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनको आपको कम करना होता है ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सको। कई लोगों को लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डिस्ट्रक्ट करने पे, यानी कि मतलब जितनी जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो, उसको ख़त्म करने की भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो बीपीआर अपने आप में एक कॉस्टली प्रोसेस है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उसका एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी होता है। उसे करके देखिए, अंडरस्टैंड दैट वेदर डिस्ट्रक्टिंग दिस करंट प्रोसेस and introducing the new one is going to increase the cost in the long run, or increase the benefit in the long run and decrease the cost. ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगेन वो कहते हैं ना कि ताजमहल एक दिन में तो बना नहीं था, तो ऑब्वियसली एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड. In a one day you are not going to see the effort, but in the long run you will definitely see. So जब आप बीपीआर इम्प्रूवमेंट की बात करो या बीपीआर एप्लीकेशन की बात करो, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से करनी पड़ती हैं, जैसे कि वेरी मच क्लियरली स्ट्रैटेजिकली डिफाइंड गोल, करना क्या चाहते हो. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कन्विंस पीपल अबाउट द सक्सेस ऑफ द बीपीआर. देन बीपीआर हमेशा टॉप से स्टार्ट होता है. The lower level manager are not supposed to rethink in that way. The upper level manager, the top level manager, they should develop the kind of structure they want in an organization so that the lower level manager will be able to understand and adapt to it. कुछ चीज़ें आप शुरू में ही समझ के रखिए, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिफाई द ऑल द प्रोसेसेस, जो कि आपको अर्ली स्टेज में अवॉइड करनी चाहिए. ठीक है, सिर्फ उन प्रोसेसेस को शुरू में इम्पॉर्टेंस दो, उन पे कॉन्सेंट्रेट करो जिनसे मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा. देन हमेशा एक टाइम फ्रेम होना चाहिए. इट शुड बी कंप्लीटेड इन अ टाइम फ्रेम, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीआर इटसेल्फ इज़ अ फेलियर अगर आप उसे टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई नहीं करते. एंड जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, विच आई टेल यू सो मेनी टाइम, कि दैट ऑलवेज इज़ अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डायनामिक, कंड्यूसिव टू चेंज. ठीक है, तो आपका बीपीआर भी उसी एनवायरनमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए. So these are the basic implications of BPR. Your redefinition of your business, you are redefining your roles and responsibility. Again, you are trying to achieve motivation, but through training now, you are giving the new processes, or you are actually innovating something new in your organization. You are designing your network again. You are trying to have a more flat structure rather than the triangular hierarchical structure. Because in BPR also, no, sorry, I mean in BPR, the most important thing that your manager will concentrate to have a more and very better and clear communication, so for and with everyone. So for that, a flat structure is required rather than the tall hierarchical structure, because उसमें आपका जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है वो बहुत स्टीप होता है. And empowerment of employee is again important, because again you are talking about a flat structure. You are asking for more help from your employee. You have to make them understand that you are not going to get let out, you're not going to fire them. You are just गिविंग देम ईदर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और द बेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो ये सब चीज़ें भी आपको उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है. सो दिस इज़ अबाउट द BPR, एंड अ शॉर्ट नोट ऑन BPR कैन कम. So please make sure that you are understanding. And whenever I'm saying it's a short note का मतलब ये होता है that you have to include whole. आपको उसके फीचर्स भी इंक्लूड करने हैं, उसके एडवांटेजेस भी इंक्लूड करने हैं, आपको उसकी प्रोसेस भी इंक्लूड करनी है, लेकिन मिनिमम वे में, so that you can writing it according to the numbers, I mean the marks.